Good morning, students. Today we are going to continue part 2 of your chapter Poets and Pancakes. Here you can see core logic. Logic that fails to consider human factors such as culture, language, social dynamic, personality. Now, the lawyer wore unique clothes. The lawyer wore unique clothes different from the usual uniform. What's the uniform of lawyers? Legal advisor, black coat, white shirt, black pant, like that. But वो different clothes पहनता था usual uniform से. That consisted of a dhoti made of khadi fabric and a slightly oversized khaki shirt. वो khaki shirt पहनता था, धोती पहनता था जो खादी फैब्रिक की थी. He was generally seen wearing pants, tie and sometimes a coat. जो आप लीगल एडवाइजर को, लॉयर को जनरली आप देखते हो उसकी यूनिफॉर्म क्या है, लेकिन वो तो धोती पहनता था. Which was like an on armor. He was a neutral monk, which logic who did not value human feelings and was usually seen helpless in a world full of literary enthusiasts. वो इस तरीके से था यहाँ पे लीगल एडवाइजर, जैसे कि बहुत ज़्यादा मजबूर है, बहुत ज़्यादा परेशान है कोई, वो यहाँ पर क्यों, क्योंकि न्यूट्रल मैन की तरह वो यहाँ रह रहा है. उसकी ह्यूमन वैल्यू की कोई, ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, और बिना एंथुसियाज्म के वो यहाँ पे लाइफ अलाइव कर रहा है, बस जी रहा है. The narrator called him a neutral man in the assembly of Gandhis and Khadis. Narrator जो ऑथर है आपका इस चैप्टर का, उसी ने इसको न्यूट्रल मैन कहा है असेंबली में, जो गांधीज फैमिली से और खादीज फैमिली से बिलोंग करते हैं. बिकॉज ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम. ही वॉज वेरी क्लोज टू द बॉस. और जैसा कि एज आई टोल्ड यू कि वो बॉस के बहुत ज्यादा क्लोज थे. एंड जस्ट एज द ट्रेंड गोज, he too was allowed to produce his own film which could not do very well. और उनकी जो प्रोड्यूस हो रही थी फिल्म, जो उनको अलाउ की गई थी, वो भी क्या था, इतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई थी, वो भी इतने अच्छे से शो नहीं कर पाए थे. So a lot of makeup products and pancake stash were used in the process. बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, पैनकेक्स हैं, जो वहां पर क्या है, मतलब ये टाइटल हैं जो उस प्रोसेस में यूज हुए हैं, उस प्रोसेस में लिए गए हैं. Eventually the boss shut down the story department. जो बॉस है उन्होंने शट डाउन कर दिया जो डिपार्टमेंट था, स्टोरी डिपार्टमेंट, उसको. The narrator expresses it in a sarcastic way. narrator ने बहुत डिफरेंट, बहुत अलग से वे में, sarcastic वे में, बहुत ज्यादा पजल वे में उसको स्टॉप किया. That this was perhaps the only instance in human history where a lawyer lost his job. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कहते हैं कि कभी भी लॉयर की जॉब नहीं गई. लॉयर कमा रहा है, बस कमाते हैं, एडवाइजर कुछ नहीं और नहीं. लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसा कभी नहीं हुआ जहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री में कि लॉयर की जॉब खो दी गई है. यहाँ पर ऐसा हुआ है बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम. पोएट्स ने यहाँ पर ऐसा क्या पूछा है, उसको घर जाने के लिए बोला है. As the story department was closed, जैसे ही स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज हो गया, poets were rendered workless along with the lawyer. poets भी खुद और लॉयर के संग में along with the lawyer वो भी एक क्या हो गया, वर्कलेस हो गया, विदाउट वर्कर मैन हो गया. Here haunt means frequently visited by. Mass means a building or room providing meals. Prohibition means the act of forbidding something. Next is leisure. Time when one is not working or occupied means free time. Prerequisite means a thing that is required as a prior condition for something else to happen. Others having a strong dislike of or opposition to something. Communism means collectivism or socialism. Filial means relating to or due from a son or daughter. Conjugal means relating to marriage or the relationship between a married couple. Compunction means reluctance. Vaguely means in a way that is uncertain. Forthcoming means about to happen or appear. The next is the Jamini Studio was frequented by famous poets. Jamini Studio जो है कहाँ पे famous poets थे वहाँ पे, जैसे कि S.D.S. योगी और संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड
हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। द मैथ्स एट द स्टूडियो वॉज एक्सीलेंट, जो वहाँ का मैथ्स था, जो वहाँ का डेकोरम था, वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट था। इट प्रिपेयर्ड अ नाइस कॉफी विच वॉज अवेलेबल ऑल डे लॉन्ग, वहाँ पे एक नाइस अच्छी सी कॉफी बनती थी जो वहाँ सब लोगों को अवेलेबल होती थी पूरे दिन के लिए। इन दोज डेज द कांग्रेस रूल मीन रेस्ट्रिक्शंस एंड अ कप ऑफ कॉफी विद फ्रेंड्स वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। जो कांग्रेस रूल था वो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करते थे, वो लोग रूल्स रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे, और एक कप ऑफ कॉफी जो है एंटरटेनमेंट पार्ट होता था उनके साथ फ्रेंड्स में पूरे दिन बिताने के लिए। ओनली द ऑफिस बॉयज एंड सम क्लर्क्स एट द स्टूडियो वर्क, वहां पे सिर्फ ऑफिस बॉयज और कुछ क्लर्क्स थे जो स्टूडियो पे वर्क किया करते थे। द अदर्स एंजॉय देयर फ्री टाइम विच वॉज नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग पोइट्री, बाकी के जो रेस्ट ऑफ द पर्सन है वो एंजॉय करते थे अपना फ्री टाइम, जो ऑक्यूपाई टाइम है वो एंजॉय करते थे, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी था, उनका रिक्वायर्ड था फॉर क्रिएटिंग पोइट्री। मोस्ट ऑफ द पोइट्स वोर क्लोथ्स मेड ऑफ खादी फैब्रिक, काफी सारे पोइट्स थे जो खादी फैब्रिक के कपड़े पहनते थे। एंड रिस्पेक्टेड गांधी जी फॉर इट्स प्रिवेलेंस बट वर नॉट पॉलिटिकली इंक्लाइंड, और गांधी जी की रिस्पेक्ट में, उनके एवज में, उनको बिलोंग करते हुए वो ये चीज करते थे, बट वर नॉट पॉलिटिकली इंक्लाइंड। लेकिन गांधी जी जैसे पॉलिटिक्स में गए थे, पॉलिटिशियन हुए थे, मतलब फ्रीडम फाइटर रहे थे, वो ऐसा पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं करते थे, वो ऐसा शो नहीं करते थे, वो सिर्फ गांधी जी को इंस्पायर करते थे, लेकिन नॉट बाय बिजनेस, नॉट बाय वर्क, ओनली बाय क्लोथ्स। They hated terms like communism because they thought that a communist did not love, वो हेट करते थे टर्म्स को, जैसे कम्युनिज्म जो टर्म आ गई, जो सोसाइटी जैसी टर्म आ गई उसको, क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कम्युनिस्ट के पास में, वो कम्युनिस्ट जो है अपनी फैमिली से, सोसाइटी जो है, कमिटी जो है अपनी फैमिली से लव नहीं करते। He would not hesitate in killing them, उनको बहुत ज्यादा हेजिटेशन नहीं होता है किसी को भी मारने में, चाहे वो उनका नोन हो, रिलेटिव हो, whatever is. He was there to create violence among ignorant and innocent people. वो वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करने जाते थे इग्नोरेंट के बीच में, जो इग्नोर किए जाते हैं उन लोगों को, और इनोसेंट लोगों के बीच में। Such a thought was prevalent in South India, ये ऐसे थॉट जो है साउथ इंडिया में प्रेवलेंट हुए हैं, वहां गए हैं, एंड द पोइट्स वर नो एक्सेप्शंस टू इट, और पोइट के पास में इसके कोई एक्सेप्शंस, कोई भी अपवाद जैसी नेगेटिव चीज नहीं है। द प्रूफ ऑफ देयर थॉट वुड बी सीन शॉर्टली, इनका जो प्रूफ है इनके सोच का शॉर्टली देखा गया है वहां पे। Trapeze, a horizontal bar hanging with 2 ropes and free to swing, used by acrobats in a circus. It means this. Homilies means sermon or lecture. Bare means empty. Gemini Studio display extreme hospitality when Frank Buchmann's moral rearmament army consisting of 200 people came to Madras in 1952. जामिनी स्टूडियो जो है डिस्प्ले करती है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉस्पिटलिटी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फैसिलिटी। जब फ्रैंक बचमैन जो है वो आर्मी में आए थे, कंसिस्ट करके कितने लोगों को, फॉर विथ 200 पीपल, केम टू मद्रास इन 1952। कब आए थे? 1952 में। कहाँ आए थे? मद्रास में। कितने लोगों के साथ में? विथ 200 पीपल। They were referred to as the international circus even though they were not very good with trapeze and the only association they had with animals. वो क्या रेफर करते हैं कि इंटरनेशनल सर्कस को, जहां पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उनकी जो एसोसिएशन है और उनकी एनिमल्स के साथ में परफॉर्म करते हैं, वॉज एट द डिनर टेबल। वो क्या है एनिमल की परफॉर्मेंस में दिखा रहे हैं कि डिनर टेबल पे एनिमल्स है, दे एट नॉन वेजिटेरियन फूड, जो एनिमल्स है वो नॉन वेजिटेरियन फूड जो सर्व किया है उसको खा रहे हैं। एंड अदर देन दैट, उससे भी अलग, दे डिड नॉट इंटरेक्ट विद एनिमल्स एज वॉज डन इन अ सर्कस, जो कि इंटरेक्शन होता है एनिमल्स और पीपल, ह्यूमंस का, वहां पर एक बॉन्डिंग दिखाते हैं। एनिमल्स इशारे में बात समझ रहे हैं, उनके जेस्चर पोस्चर को जानते हुए बात समझ रहे हैं, या जो वो अनाउंस कर रहे हैं, जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, जो उनको कमांड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको वो चीज समझ रहे हैं। वहां पे ऐसा कोई भी बॉन्ड या कोई भी इंटरेक्शन एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में नहीं किया गया इन अ सर्कस। There are 2 plays that were performed with full proficiency and professionalism. वहां पे सिर्फ 2 प्ले ऐसे थे, 2 प्लेज ऐसे थे जो कि परफॉर्म किए गए थे विद फुल प्रोफिशिएंसी, बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, विद
प्रोफेशनलिज्म, बहुत ज्यादा प्रोफेशनली, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, वेल ट्रेन्ड होके गॉट अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन, और उनको एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा से मिला था, उनकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी, प्रशंसा हुई थी। While they perform it again and again in different parts of Madras, और उसके दौरान उन्होंने ये सी परफॉर्मेंस को अगेन एंड अगेन मद्रास में मद्रास के डिफरेंट पार्ट्स में परफॉर्म भी किया था, क्योंकि उनको अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस थी, वो प्ले अप्रिशिएबल था। दो द प्लॉट्स एंड मैसेज वर नॉट कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक कि उनके जो प्लॉट्स हैं और जो मैसेजेस हैं वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव नहीं थे, वो इतने ज्यादा टिपिकल कठिन नहीं थे। देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर नियर टू परफेक्शन, उनके जो सेट थे वहां पे जो उन्होंने डेकोरम किया था, जो उनके कॉस्ट्यूम्स थे वो परफेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक थी, बहुत ज्यादा नियर थी। परफेक्ट नहीं था लेकिन परफेक्शन उसमें शो हो रहा था कि प्रैक्टिस की है, ट्रेन किया गया है। so much so that for many years, काफी सालों से वो चीज कर रहे हैं। तमिल प्लेज डिस्प्ले सनसेट, तमिल का प्ले जो था वो डिस्प्ले करता है सनसेट को और सनराइज को इन अ वे इनहेरिटेड फ्रॉम जोथम वैली, और इस तरीके से जैसे वो पहले से एंशिएंट टाइम से, पूर्वजों से ही चलता आ रहा है। कहां से? जोथम वैली से। इट्स अ नेम। Next is counter movement, means a movement or other action made in opposition to another. Played into their hands means to do something that one does not realize will hurt oneself and help someone else. Use means complexion. Here the MRA was opposed to communism and people like Mr. Vasan was suffering at their hands. जो MRA है वो कमिटी है जो अपोज है, किस? कम्युनिज्म के अपोज है, और पीपल जो है मिस्टर वसन जैसे वो सफर कर रहे हैं उनके हाथों से, वो सफर कर रहे हैं उनके अंडर में आके। कैसे? हाउएवर दीज बॉसेस, ये बॉस जो है ना, इस तरह के बॉस जो होते हैं और जो ये बिजनेसमैन होते हैं, तो ये बिजनेस जो रिमेन इनका अनअफेक्ट रह जाता है, कोई इफेक्टिव वे नहीं शो करता, मतलब यूजलेस दिखता है, वर्कलेस दिखता है बाय सच इश्यूज, इन इश्यूज को लेकर। क्या इश्यूज थे? नॉट ओनली द ऑडियंस बट ऑल्सो द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ ग्रेट टाइम होस्टिंग 200 पीपल। यहां तक कि ऑडियंस को ही नहीं बल्कि जेमिनी स्टूडियो के पास भी ये जो 200 लोग आए थे, 200 पीपल आए थे, वो ग्रेट टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, बहुत अच्छा टाइम था। फ्रॉम ओवर 20 नेशनलिटीज, जो उनके 20 नेशनलिटीज हैं, राष्ट्रीयता उनको प्राप्त थी, उनमें से ये जो 200 लोगों का परफॉर्मेंस था, 200 लोगों की प्रेजेंस थी, बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम देयर यूजुअल रूटीन, उनके डेली के जनरल रूटीन से, यूजुअल रूटीन से डिफरेंट था ये क्राउड परफॉर्मेंसेस, वेयर ग्रुप्स ऑफ पीपल वुड वेट टू गेट हीप्स ऑन मेकअप ऑन देयर फेस बाय द मेकअप डिपार्टमेंट, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक दूसरे के उन्होंने क्या कर रखा है, फेस पे जो मेकअप डिपार्टमेंट से जो मेकअप होता है, बहुत ज्यादा हीप ऑफ मेकअप लगा रखा है। हीप यानी होता है पूरा झुंड, उसका पूरा का पूरा ढेर, ठीक है, वो उन्होंने मेकअप का ढेर जो उन्होंने अपने फेस पे लगाकर वहां पे परफॉर्मेंस दी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जेमिनी स्टूडियो गॉट येट अनदर चांस, और कुछ ही महीनों बाद जेमिनी स्टूडियो को अनदर चांस मिला और उनको वेलकम किया गया फ्रॉम इंग्लैंड बाय अ पोएट। इंग्लैंड पोएट से पीपल मेड गैसेस अबाउट हु वाज गोइंग टू विजिट दिस टाइम। अब पीपल जो है इमेजिन कर रहे थे, गैस कर रहे थे कि हाँ इस बार कौन जाएगा, किसको चांस मिलेगा। बिकॉज मोस्ट पीपल न्यू अ फ्यू पोइट्स, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे थे, इतने सारे प्ले ड्रामा उन्होंने परफॉर्म कर ली, फिल्म मेकिंग कर ली, तो इतने सारे लोग थे कि वो जानते थे, पर वो चाहते थे कुछ लोग ऐसे जाएं जो नहीं जानते हैं, तो बहुत सारे पोइट्स को जानते थे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ है या टेनिसन कह लो, या एंथुसियास्ट जिनके बारे में जानते हैं, जॉन कीट्स हैं आपके, शैली हैं आपके, बायरन और इवन इलियट भी जो है वो भी एक पोइट है। दे वर क्यूरियस एज टू हु वाज द वन विजिटिंग जेमिनी स्टूडियो, और वही देख रहे थे हमारे स्टूडियो में अब हम किसको वेलकम करेंगे, कौन आने वाला है। ये सब बड़े बड़े पोइट्स हैं जिनको लेकर वो बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, एक्साइटेड थे। सरमाइज मीन्स गैस और सस्पेक्ट हियर। The person about to visit Gemini Studio was not a poet. जो पर्सन वहां पे विजिट करने आ रहा था जेमिनी स्टूडियो में, वो न केवल पोएट था बट एन एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर का एक एडिटर था वो। एंड दस द बॉस वॉज प्लानिंग ऑन गिविंग हिम अ ह्यूज वेलकम, और जो उनके बॉस है वो प्लान कर रहे थे उसको एक ह्यूज वेलकम, एक अच्छा सा एनॉर्मस वेलकम वो देंगे
इवन वसन वॉज द एडिटर ऑफ अ फेमस तमिल वीकली पब्लिकेशन, यहाँ तक कि वसन, जो मिस्टर वसन यहाँ पे बॉस का नाम आया था, वो एडिटर थे फेमस तमिल वीकली पब्लिकेशन का, जिसका टाइटल था आनंद विकटन। देयर वर मैनी फेमस पब्लिशिंग हाउसेज इन मद्रास, काफी सारे पब्लिशिंग हाउसेज भी थे मद्रास में, दैट हैड बीन सेटअप बाय द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के थ्रू सेटअप किए गए थे, सेटल किए गए थे, विच एवरीवन एट जेमिनी स्टूडियो न्यू अबाउट, जिसके बारे में जेमिनी स्टूडियो जानता था और उसके हर बंदा जानता था। द हाइएस्ट लेवल ऑफ मैनेजर्स एट द हिंदू, जो हाइएस्ट लेवल था मैनेजर्स का हिंदू में, वर इन्वॉल्व, विच मीन दैट द एडिटर वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, एडिटर जो है प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। द स्टाफ एट जामिनी हु ओनली न्यू ऑफ फ्यू न्यूज़पेपर, जो जामिनी का स्टाफ था वो केवल सिर्फ 2 ही न्यूज़पेपर्स को जानते थे, क्या नाम है, मैनचेस्टर गार्जियन एंड द लंदन टाइम्स, ये 2 तरह के न्यूज़पेपर के नेम वो जानते थे। द मैन हु वाज नॉट द एडिटर ऑफ ईदर ऑफ द टू, और जो एडिटर वहां आ रहा था, न्यूज़पेपर एडिटर, वो यहाँ पर दोनों के ही एडिटर नहीं थे। अब वो कौन थर्ड पर्सन आ रहा है देखेंगे हम। Here bafflement means confusion or bewilderment. The guest finally arrived at around 4 in the afternoon. अब guest जो है आफ्टरनून में at 4 o'clock around वहाँ पे अराइव हुआ, पहुंचा। He was tall and had a serious looking British face. Obviously बाहर का था, इंग्लैंड का था, तो उसका ब्रिटिश फेस तो रहेगा ही, तो वो बहुत ज्यादा टॉल था। बाहर के लोगों की हाइट भी बहुत अच्छी होती है, वेट भी अच्छा खासा होता है, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो उनकी बहुत ज्यादा सीरियस लुकिंग कहाँ से मिल रही थी, एकदम ब्रिटिशर का फेस लग रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, विच वॉज अननोन टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। और जैसा कि बताया, ज्यादा पोइट को नहीं जानते थे, जो मेन फेमस पोइट थे उनको जानते थे, प्लस उनकी जो न्यूज़पेपर के एडिटर आ रहे थे, प्लस वो 2 ही न्यूज़पेपर को जानते थे, तो थर्ड पर्सन कौन सा है, कौन सा थर्ड वाला एडिटर है, तो इसलिए वो ज्यादा लोग उनको नहीं जानते थे, वो उनके लिए स्ट्रेंज थे, अननोन थे। तो बॉस वेलकम हिम विद अ स्पीच, बॉस ने उनका वेलकम कैसे किया, बाय गिविंग अ स्पीच, एंड द स्पीच वाज एविडेंट ऑफ द फैक्ट, और जो स्पीच है वो ये तथ्य है, वो ये फैक्ट रिप्रेजेंट करती है, दैट ही न्यू अबाउट हिम जस्ट एज लिटिल एज दे डिड, जैसा कि वो जानते थे कि इतनी छोटी है जितना उन्होंने परफॉर्म किया है। द स्पीच वॉज जनरल, स्पीच जो है नॉर्मल जनरल थी, जैसे जनरली होती है, यूजुअली होती है, बट दे कुड नॉट हेल्प बट हियर वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने वो स्पीच सुनी नहीं थी, लेकिन इसमें ऐसे वर्ड्स थे लाइक डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम टाइप, these kinds of words are there. Then it was time for the poet for editor to enlighten the audience, but unfortunately अब ये enlighten ऑडियंस को एनलाइटन करने का टाइम था, मतलब ऑडियंस को शो करने का टाइम था, उनकी तरफ लाइट दिखाने का टाइम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली नो वन कुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ही वाज सेइंग, कोई भी उसने जो शब्द कहे वो नहीं समझ पाया, बिकॉज ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड एंड व्हाट ही स्पोक each and every word in only English. British language they did not understand, so एक भी सिंगल वर्ड वो नहीं समझ पाए because of his British accent. अगर वो हिंदी में भी बात कर रहा था तो भी इस एक्सेंट की वजह से वो लोग नहीं समझ पाए। Everyone was left bewildered, सब लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए और सब लोग कंफ्यूज पजल होके वहां से वो जगह लीव कर दिया, उन्होंने लेफ्ट कर दिया। द विजिटर वॉज जस्ट एज कंफ्यूज, विजिटर खुद वहां पे कंफ्यूज था। पीपल कुडंट अंडरस्टैंड द रीजन वाई अ ब्रिटिश पोएट वॉज देयर, पीपल जो है वहां के वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे कि इस रीजन को कि क्यों ब्रिटिश पोएट को वहां पे स्टूडियो में बुलाया। दैट मेड तमिल फिल्म्स, ऐसे स्टूडियो में जहां पर क्या होती थी, तमिल फिल्म्स बनती थी, तमिल ड्रामा होते थे, तमिल प्ले होते थे, तो वो कैसे समझ पाएंगे उस चीज को। एंड इन बिटवीन पीपल हु कुडंट अफोर्ड टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री, और यहाँ तक कि ऐसा इंसान जिसकी इंग्लिश पोइट्री का टेस्ट भी हमें डेवलप नहीं कर सकता, हमारी ग्रोथ नहीं कर सकता। हिज विजिट वॉज इंडीड अ मिस्ट्री, उसकी विजिट जो थी वो इनवैल्यूएबल हो गई उनके लिए, वर्थलेस हो गई उनके लिए, इंडीड हो गई। स्टीफन दैट वॉज हिज नेम, उसका एडिटर का नाम क्या था, Stephen. Pursuit means hobby, activity here. Genius means an exceptionally intelligent person. Persevering means continuing in a course of action despite difficulty or delay in achieving success. Drudge means a person made to do hard, menial or dull work.
Manuscript means an author handwritten or type, an author's handwritten or typed text that has not yet been published. Next is literary means well-educated people who are interested in literature only. Sneaking into doing something in a secretive or stealthy way. Forbidden means not allowed, ban. Forbidden means not allow means ban. Ashok Mitran feels that writing cannot be performed by the intelligent. अब राइटिंग जो है इंटेलिजेंसी है या नहीं, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, ये परफॉर्म नहीं कर सकती, राइटिंग कभी आपको ये शो नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज अ टास्क ऑफ दोज हु आर पेशेंट एंड कैन डू द हार्ड वर्क. क्योंकि एक टास्क है उन लोगों का जो बहुत ज्यादा पेशेंसफुली होते हैं, जिनमें पेशेंस ही बहुत ज्यादा होती है और हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है. अ राइटर शुड नॉट हैव एनी फीलिंग्स. राइटर के पास में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती. नॉट बी बॉक्ड डाउन बाय रिजेक्शन, वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ होता है. एंड मस्ट बी एबल टू प्रिपेयर अ लेंदी प्रोज, और वो लेंदी प्रोज मतलब लेंदी स्टैंजा, लेंदी पोएट्री बनाने के लायक होता है. Mail it to the editor along with a stamped envelope for the return of the manuscript. जो रिटर्न हुई थी उसको मैन्युस्क्रिप्ट एक रिटर्न हो गई थी, उससे उसने एडिटर से मेल करवाई विद स्टैम्प. For such writers, the Hindu had advertised that there was a short story contest organized by a British publication titled The Encounter. अब उन हिंदुओं ने जो एडवर्टाइज किया था, वहां के लोगों ने मतलब जेमिनी स्टूडियो वालों ने एडवर्टाइजमेंट दिया था शॉर्ट स्टोरी पे, और वो ऑर्गेनाइज हुआ था बाय ब्रिटिश पब्लिकेशन, जिसका टाइटल क्या था, द एनकाउंटर. द राइटर्स एट जेमिनी स्टूडियो हैड नॉट हर्ड ऑफ द नेम. जो जेमिनी स्टूडियो के राइटर है उन्होंने इवन उसका नाम भी नहीं सुना था. Ashok Mitran wanted to know about it before he decided to spend money on mailing his entry and sending it to England. अशोक मित्रन क्या चाहते थे, वो ही जानना चाहते थे डिसाइड करने से पहले, स्पेंड करने से पहले मनी को, जो एंट्री के थ्रू मेल कर रहे हैं वो और सेंड कर रहे हैं इंग्लैंड की, कितना मनी लगेगा, कैसा कितना खर्चा आएगा. ही विजिटेड द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी. वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए. इन दोज डेज द एंट्रेंस ऑफ द लाइब्रेरी वॉज सिंपल. उन दिनों जो लाइब्रेरी में एंट्रेंस थी बहुत ज्यादा सिंपल थी, विदाउट फॉर्मेलिटीज थी, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं थी. विदाउट साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेज एंड नो वन फेल्ट एज इफ दे वर एंटरिंग अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया. बिना साइन बोर्ड्स के थी, बिना नोटिसेस के थी, और कोई भी ये फील नहीं कर रहा था यदि कोई रेस्ट्रिक्शन एरिया में एंटर कर ले तो हम क्या बोलेंगे, कैसे उसको स्टॉप करेंगे. At the library, he saw many copies of the encounter. और लाइब्रेरी में उसने काफी सारी कॉपीज देखी, किसकी, जो मूवी का टाइटल उन्होंने दिया था, जो नाम दिया था उन्होंने द एनकाउंटर, उसके पे बेस पे. The editor's name rung a bell in Ashok Mitran's heart. जो एडिटर का नाम है वो रिंग हुआ, वो बजा बैल की तरह अशोक मित्रन के हार्ट में, उसके दिल में. ही फेल्ट दैट ही हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर. उसको ऐसा फील हुआ जैसे बहुत लंबा खोया हुआ भाई मुझे मिल गया बहुत समय से. एंड वॉज ग्लैड व्हेन ही मेल्ड हिज एंट्री फॉर द कॉन्टेस्ट. और बहुत ज्यादा खुश हुआ उसको मेल करके कॉन्टेस्ट की एंट्री के लिए. He thought that he too would sing the same song when he would get his mail. वो खुद भी ये सोच रहा था कि मैं भी इसके संग में ये सॉन्ग गाऊंगा, जब मैं इसको मेल भेज रहा हूं तो मैं इसी के साथ में ये सॉन्ग, सेम सॉन्ग गाऊंगा. The editor's name was Stephen Spender, as I told you. Here, meaning of Stephen Spender means an English poet, essayist, जो essay type में lengthy prose लिखते हैं, who concentrated on the themes of social injustice and class struggle. Henri Guide means a French writer, humanist, moralist, received the Nobel Prize for Literature in 1947. Richard Wright means an American writer known for his novel Native Son and his autobiography Black Boy. Ignazio Silone means an Italian writer who was the founder member of the Italian Communist Party in 1921 and is known for the book The God That Failed. It's a name of book authored by him. Arthur Koestler means a Hungarian-born British novelist known for his novel Darkness at Noon.
Louis Fisher means a well-known American journalist and a writer of Mahatma Gandhi's biography entitled The Life of Mahatma Gandhi. The Oscar-winning film Gandhi is based on the biographical account. Here you can see many years later when the writer left Gemini Studio. जब writer ने Gemini Studio छोड़ा, he had plenty of free time but not much money. उसके पास टाइम तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था, लेकिन उसके पास इतना sufficient much money नहीं था. So discounted goods on sale attracted him. तो उसने goods को discount पे रखा, अपने उसको सेलिंग प्रोसेस लाया ताकि वो अट्रैक्ट कर सके, और उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुआ उस चीज पे. वंस ही केम अक्रॉस बुक्स बीइंग सोल्ड ऑन द फुटपाथ. एक बार वो वहां पर गया तो बुक्स बेची जा रही थी फुटपाथ पे, पोस्ट ऑफिस के बाहर, जो लोकेटेड है ऑन द मद्रास माउंट रोड. दे वर प्राइस एट 50 पैसा ईच. उन बुक्स की क्या प्राइस थी? 50 पैसा ईच पर बुक. दे वर टर्म्ड एज ए स्टूडेंट एडिशन एंड दस वर ऑफर्ड एट अ स्पेशल लो प्राइस. और वो स्टूडेंट के एडिशन पे वो बेच रहा था, सेल आउट कर रहा था, और वो ऑफर कर रहा था कि स्पेशल लो प्राइस, बिकॉज दे वर सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी. क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे थे वहां पे उस एडिशन के 50th एनिवर्सरी, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन का था. He paid 50 paisa and took a copy of the book titled The God That Failed. As I told you the book name. तो उसने क्या करा, 50 पैसा दी और उसकी बुक की कॉपी उसने खरीद ली वहां से. इट हैड 6 एसेज. उसमें 6 ऐसे थे बाय 6 फेमस मैन. 6 फेमस लोगों के, पॉपुलर लोगों के ऐसे थे उसमें, हु रोट अबाउट कम्युनिज्म. जिसने क्या कर रखा था, कम्युनिज्म के बारे में लिख रखा था. जिन लोगों ने, द राइटर्स वर एंड्री गाइड, Richard Wright, Ignazio Salon, Arthur Koestler, Louis Fisher and Stephen Spender. That was an editor. As the writer reads Stephen's name, जैसे ही उसने स्टीफन का नेम पढ़ा, the book became important for him. बुक उसके लिए बहुत ज्यादा important, वैल्यूएबल शो हो गई, बिकॉज ही हैड विजिटेड जैमिनी स्टूडियो. क्योंकि वो जैमिनी स्टूडियो वहां पर आए थे विजिट करने. ही वॉज रिमाइंडेड ऑफ हिम एंड द नेम साउंडेड फैमिलियर. वो उसको रिमाइंड करा रहे थे और उसको ये नेम जो है, साउंड जो है, फैमिलियर लगा, सुना सुना लगा, नोन लगा. अशोक मित्रन थॉट दैट द बॉस ऑफ जैमिनी स्टूडियो मे नॉट बी कंसर्न विद स्पेंडर्स पोएट्री. अशोक मित्रन ने सोचा कि जो बॉस है जैमिनी स्टूडियो के, वो शायद इसके बारे में कंसर्न नहीं है स्पेंडर्स पोएट्री के, इसलिए उसको इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी, और उसको सोचा कि हम तुम्हारी बात, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारा एक्सेंट नहीं समझ पाए. स्टूडेंट्स, दिस विल क्लियर टू यू ऑल. होप सो. थैंक यू.